دشمن لابیز کے ذریعے ملک کو تباہ کرنے کے لیے مسلط کی گئی، وہ پاکستان کے اس ادارے کو بھی برائے فروخت، نیلام اور گروی رکھ کے ملک کی مالی خود مختاری سرنڈر کرنے جا رہی ہے۔ میں یہاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سائے سے کھڑا ہو کے ہر پاکستانی کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہر پاکستانی پاکستان کی مالی خود مختاری کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ہر محب وطن پاکستانی ہماری آنے والی نسلوں کو ان کی خود مختاری کو بچانے کے لیے آج اپنا کردار ادا کرے اور عمران نیازی کا ہاتھ پکڑے کہ یہ پاکستان کی مالی خود مختاری کا سودا اپنی نالائکی پر پردہ ڈالنے کے عوض نہ کر جائے۔ آج آئی ایم ایف کے سامنے عمران نیازی اس لیے سرنڈر کر رہا ہے کہ یہ ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا چکا ہے۔ 3.25 سالوں میں پاکستان کے تمام معاشی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں۔ ملک کو تقریباً دیوالیہ کر دیا ہے اور اب صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے اور کچھ مہینوں کا سہارا لینے کے لیے یہ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے گروی رکھ رہا ہے۔ آج اگر یہ قانون نہ روکا گیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں 2 اقتدار ہو جائیں گے، ایک منتخب سیاسی وزیر اعظم اور ایک غیر منتخب مالیاتی وزیر اعظم۔ جو سیاسی وزیر اعظم ہوگا وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوگا، وہ 22 کروڑ عوام کو جواب دہ ہوگا، لیکن جو غیر منتخب مالیاتی وزیر اعظم گورنر اسٹیٹ بینک کی صورت میں مسلط ہوگا وہ پاکستان میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا، وہ صرف آئی ایم ایف کو جواب دہ ہوگا۔ تو میرے پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں، آج وقت ہے کہ ہم سب اپنا کردار ادا کریں اور اس ادارے کی خود مختاری، پاکستان کی مالی خود مختاری کو بیرونی اداروں کے یرغمال بننے سے روکیں۔ یہ ایجنڈا ان لوگوں کا ہے جنہوں نے فارن فنڈنگ کے ذریعے عمران خان کو اس ملک پہ برسر اقتدار لا کے مسلط کیا ہے۔ آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران نیازی، جس نے ایمانداری کا میک اپ کیا ہوا تھا، قوم کو ہر وقت شفافیت کا درس دیتا تھا، جب فارن فنڈنگ کیس کی رپورٹ آئی، اس کا میک اپ اترا تو اندر سے ایک نہایت بھیانک کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا اور پاکستان دشمن لابیز سے بیرونی فنڈنگ حاصل کرنے کا چہرہ سامنے آیا ہے۔ اور وہ شخص جو افغانستان میں امریکہ کی مداخلت کی خلاف ورزی یا مخالفت میں بیانات دیا کرتا تھا، پتہ چلا کہ وہ نیٹو کے کانٹریکٹر سے بھی چندے لیا کرتا تھا اور ان نیٹو کے کانٹریکٹرز کو انعام کے طور پہ بڑے بڑے ہوٹل بنانے کے منصوبے بھی عمران نیازی نے دیے ہیں۔ تو آج پاکستانی قوم سوال کرنا چاہتی ہے، ہمارے انصاف کے اداروں سے پوچھنا چاہتی ہے کہ اگر 22 کروڑ عوام کے ایک منتخب وزیر اعظم کو اس بنا پہ نااہل کر دیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے 10,000 درہم کی تنخواہ وصول نہیں کی اور اسے اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا، تو وہ وزیر اعظم جس نے کروڑوں اربوں روپے کی بیرون ملک
मुकीम पाकिस्तानियों के चंदों में बददियानती की, गबन किया, फ्रॉड किया, इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया, कौम को धोखा दिया, गलत स्टेटमेंट्स को साइन करके दिया। आज कौम साकिब निसार साहब से भी पूछना चाहती है, क्या सादिक और अमीन उसे कहा जाता है कि जो झूठे बयानात इलेक्शन कमीशन को देता है, जो झूठी दस्तावेजात पे दस्तखत करता है? क्या सादिक और अमीन उसे कहा जाता है जो सादा लोग बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से चंदे बटोरता है और उन्हें खुफिया बैंक के खातों में छुपाकर उनसे अल्ले तलल्ले करता है, उनसे ज़ाती मकासद के लिए उन फंड्स को इस्तेमाल करता है? क्या सादिक और अमीन की तारीफ पे वो शख्स भी आता है कि जो झूठी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से स्टेटमेंट्स जारी करवाता है, जो करोड़ों रुपए की मिस डिक्लेरेशन करता है? ये सवाल है जो पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से पूछने पे मजबूर हो गए हैं। अगर एक वजीर आज़म को इस बिना पे नाअहल कर दिया गया कि उसने अपने बेटे के 10,000 दरम की तनख्वाह वसूल नहीं की, तो जिसने पाकिस्तानी कौम के करोड़ों अरबों रुपए पे डाका डाला, जिसने पाकिस्तान दुश्मन लोगों से चंदे वसूल किए, जिसने मिस डिक्लेरेशन की, जिसने कौम से धोखा किया, उसको कैसे नाअहल नहीं किया जाता? इमरान नियाज़ी का एक एक दिन इस मनसब के ऊपर अब बैठना इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद हमारे निज़ाम अदल के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है। सवाल है कि हम एक फाइनेंशियल मुजरिम को, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसने करप्शन की, जिसने अपने पार्टी के मुलाजमों, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, चपड़ासियों के नाम पर पैसे मंगाकर उनसे पैसे खाए, उनसे पैसे वापस लेके ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किए। ये काम उसने अपने किसी कारोबार के लिए नहीं किया, ये धंधा उसने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के चंदों के साथ किया है, जो कि इंतहाई काबिले मजम्मत है। और आज वक्त आ गया है कि इस फ्रॉड को, इस धोखे को जो पाकिस्तानी कौम के साथ किया गया है, इसका हिसाब लिया जाए। और मैं मुतालबा करता हूं कि इमरान नियाज़ी फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी हो, चूंकि ये मुतालबा किया करता था कि वजीर आज़म अगर अपने ओहदे पे बैठा रहेगा तो वो तहकीकात पे असरअंदाज हो सकता है। इमरान नियाज़ी साहब, आपका अपना जो पैमाना है, आपने जो अपना मॉरल स्टैंडर्ड कायम किया था कि अगर वजीर आज़म पर इल्ज़ाम हो तो वजीर आज़म को इस्तीफ़ा देकर आज़ादाना तहकीकात का रास्ता हमवार करना चाहिए, तो अब तारीख आपकी तरफ देख रही है। फौरी तौर पर इमरान खान को इस्तीफ़ा देकर फॉरेन फंडिंग केस की आज़ादाना तहकीकात का मौका फराहम किया जाना चाहिए। और अब हमें पता चला कि ये स्टेट बैंक के कानून को क्यों नहीं रोक सकता, इसलिए कि स्टेट बैंक के इस कानून के एवज ये गवर्नर स्टेट बैंक से अपने लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना चाहता है। इमरान नियाज़ी इस वक्त स्टेट बैंक की स्क्रूटनी के नीचे है। स्टेट बैंक इन तमाम फॉरेन फंडिंग की तफसीलात उसके काबू में है। इमरान नियाज़ी स्टेट बैंक की
خود مختاری کے اس قانون کو پاس کر کے گورنر اسٹیٹ بینک کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ذریعے کلین چٹ لے سکے. ہم یہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ذریعے NRO لے سکے. ہم یہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. ہم یہ انصاف پہ ڈاکہ نہیں ڈلنے دیں گے. آج عمران نیازی اسٹیٹ بینک کا مجرم ہے اور اسٹیٹ بینک کا مجرم اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا قانون پاس کر کے گورنر اسٹیٹ بینک سے اس کو خوش کر کے اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مطالبہ کروں گا. یہ پاکستان کی تاریخ کا کرپشن کا اہم ترین کیس ہے. فوری طور پہ وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے علیحدہ کیا جائے چونکہ عمران نیازی خود کو اس کرپشن سے بچانے کے لیے اسٹیٹ بینک کا سودا کر رہا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ رہا ہے تاکہ فورن فنڈنگ کیس میں یہ اسٹیٹ بینک سے کلین چٹ لے سکے. ہم یہ سودا نہیں ہونے دیں گے. ہم پاکستان کی خود مختاری پہ عمران خان کی کرپشن کا سودا نہیں ہونے دیں گے. عمران خان کو جواب دینا پڑے گا, قوم کو جواب دینا پڑے گا, اوورسیز پاکستانیز کو جواب دینا پڑے گا. اور میں اوورسیز پاکستانی سے شرمندہ ہوں کہ ہم نے ایک ایسا سیاستدان پاکستان میں پیدا کیا جس نے اوورسیز پاکستانیز کی خون پسینے کی کمائی کو ان سے بٹورا, ان کو پسلا کے ان سے حاصل کیا اور اس کو غبن کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. میں اوورسیز پاکستانی سے معذرت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے مجرم عمران نیازی کو, جس نے ان کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالا, ان کے پیسوں میں غبن کیا, ہم اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. آج منی بجٹ کے صورت میں جو پاکستان پر عذاب مسلط کیا جا رہا ہے, ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے اور ڈٹ کے کریں گے. اور میں پی ٹی آئی کے ہر MNA کو اور پی ٹی آئی کے ہر MNA کے ووٹر کو کہوں گا کہ آپ اپنے حلقے کے MNA کو جا کر بتائیں کہ اگر آپ نے منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے سودے پر ووٹ دیا تو آپ کو پاکستان کی تاریخ میر صادق اور میر جعفر کے نام سے پکارے گی. ان پی ٹی آئی کے نمائندوں کو ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ جا کر بتائے کہ جو پی ٹی آئی کا نمائندہ پاکستان کے مفاد کا سودا کرے گا, عمران نیازی کی نالائکی اور ناکامی کے عوض غریبوں پہ 350 ارب کا بوجھ ڈالے گا اور اسٹیٹ بینک کو بیچے گا, اس کا محاسبہ اس کے ووٹر کریں گے. میں پی ٹی آئی کے ووٹرز کو بھی, سیاست ایک طرف, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی تقسیم ایک طرف, ہم سب پہلے پاکستانی ہیں. ہر پی ٹی آئی کے ووٹر کا فرض ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو پاکستان کے مفاد سے کھیلنے سے روکے اور یہ ادارہ جو قائد اعظم کی نشانی ہے, جسے قائد اعظم نے پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کی علامت قرار دیا, اس کی شناخت اور اس کے کردار کو سودا ہونے سے بچائیں, IMF کا غلام ہونے سے بچائیں. یہ ادارہ پاکستان کے عوام کی پراپرٹی ہے اور پاکستان کے عوام کی پراپرٹی رہنی چاہیے. احسان اقبال صاحب یہ بتا دیں کہ ICPR کے پریس کانفرنس کے بعد جو انہوں نے واضح کہہ دیا تھا کہ نہ وہ نواز شریف سے ڈیل کر رہے ہیں, نہ وہ جو
सिविलियन हुकूमत के साथ वो जुदा हो रहे हैं, मतलब वादे हो गया। अब क्या नवाज शरीफ जो हफ्तों में उनकी आमद थी, क्या वो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? और ये भी इतलात हैं कि नवाज शरीफ जो है ना मार्च में जो धरना है उसको लीड करने जा रहे हैं, तो क्या हिकमत अमली है इसके बाद? देखिए, मैं ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ, मुस्लिम लीग नून डील की सियासत पे यकीन नहीं रखती। मुस्लिम लीग नून वोट और आइन की सियासत पे यकीन रखती है। हमने 101 दफ़ा कहा है कि हमारी किसी से कोई डील नहीं है, लेकिन हमारी बात कोई सुनता नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं डीजी ISPR का कि उन्होंने भी वाजे कर दिया है कि उनकी हमारे साथ कोई डील नहीं है। हम तो पहले ही कहते थे हमारी उनके साथ कोई डील नहीं है, तो अब उन्होंने भी कह दिया उनकी हमारे साथ कोई डील नहीं, तो ये बड़ा रीअश्योरिंग है। मुस्लिम लीग नून की डील सिर्फ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ है कि हमने इस मुल्क में आइन को बालादस्त करना है, वोट की इज्जत को मनवाना है, आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन करने हैं और इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है। ये बताइएगा एहसन इकबाल साहब के मौजूदा सूरत हाल में आप कह रहे हैं कि आप डील नहीं कर रहे हैं, एक इदारे का तर्जमान कह रहा है कि हम डील होने नहीं दे रहे, तो आप ये बताएं कि ये डील कर कौन रहा है? कोई तो कोई डील कर रहा होगा, कोई बात तो हो रही होगी ना, ये जी इसकी वजाहत कर देना। बालादस्ती की बात की मियां शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में जब इंतहाई अवाम दुश्मन बजट आप लोगों को बकौल आ रहा मिनी बजट, उस मौके पर अहम मौके पर मौजूद नहीं होते, क्या वजह है कि नून लीग की क़यादत ऐसे मौकों पर गायब हो? ये बताइएगा कि डील कर कौन रहा है जी, बताइए। देखिए, पहली बात यह है कि इस मुल्क के अंदर डीलों की सियासत ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है। इसीलिए नवाज शरीफ साहब का और मुस्लिम लीग नून का दो टोक मौक़िफ़ है कि अब हमें डीलों की सियासत को दफन करना है, अवाम, आइन और वोट की सियासत को बालादस्त करना है। डील कौन कर रहा है, इस बात का जवाब वही दे सकता है जो डील कर रहा है। हम कोई ना डील कर रहे हैं, ना कोई डील करना चाहते हैं, तो लिहाजा हम डील के किसी सौदे से बाखबर नहीं, क्योंकि हम डीलों की मंडी का रुख ही नहीं करते। जो बात आपने कही, मिनी बजट और स्टेट बैंक का लॉ अभी ले हुआ है, उस पर बहस होगी और उस पर वोटिंग होगी और अपोजिशन की लीडरशिप पूरी तादाद में वहाँ पर डट कर इसकी मुखालफत करेगी। मैं कल MQM से भी मिला हूँ, उनको भी दरख्वास्त की है कि वो मिडिल क्लास और गरीबों की जमात हैं कि आइए आप भी हमारा साथ दें, हम इस मिनी बजट और स्टेट बैंक के सौदे का रास्ता रोकें। इसी तरह काफ लीग, GDA और PTI के अरकान असेंबली, उनको भी हम यही पैगाम दे रहे हैं कि ये मिनी बजट और स्टेट बैंक लॉ किसी जमात का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है, 22 करोड़ अवाम का मसला है। हम सबको अवाम और मुल्क की खुद मुख्तारी के साथ खड़े होना चाहिए। अच्छा, ये बता दें एहसन इकबाल साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त आपके ताल्लुकात की सनोयत के हैं? पार्लियामेंट के अंदर तो आप लोग एक साथ हैं, बाहर जो आप धरना देने जा रहे हैं मार्च वाला, और उसमें भी उनको दावत देंगे या क्या प्लान है? अच्छा एहसन साहब, आप मुस्लिम लीग नून की तरदीद है कि कोई डील नहीं हो रही, ISPR ने भी तरदीद की, आप लोगों की इस्टेब्लिशमेंट से डिमांड क्या है कि उनका करैक्टर क्या होना चाहिए? दूसरा, आपने साहब की बात की, तो आप लोगों की गवर्नमेंट कल आती है तो क्या इमरान खान और उनके वुज़रा के खिलाफ भी इसी तरह साहब के केसेस बनाए जाएंगे? ये बताइएगा कि पाकिस्तान हमेशा मजबूरी में IMF के पास जाता है, अगर आपकी हुकूमत होती तो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को किस तरह डील करते, कैसे निकलते? एक और सवाल कि इसहाक डार जो माजी में आती के थे, उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को डिटेक्ट करते रहे, तो इस पर जो है मुख्तार साहब ने भी उनकी पॉलिसी को गलत करार दिया, तो आप इस पर क्या कहेंगे? दोनों सवाल का जवाब दें। देखिए, पाकिस्तान IMF के पास पहली दफ़ा नहीं गया, कई दफ़ा जा चुका है। हर दफ़ा स्टेट बैंक के बारे में IMF ने इससे मिलते जुलते मुतालबात किए हैं, लेकिन कभी किसी हुकूमत ने उन मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जो इमरान न्याजी साहब कर रहे हैं। 98 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट बैंक का लॉ मंजूर किया था, जिसके तहत स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी चलाने
पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर, पाकिस्तान के बैंक्स को रेगुलेट करने, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करने और जो भी मालियाती मामलात हैं उसकी मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल हो चुकी थी। उसके बाद हम नहीं समझते कि मुल्क के खुद मुख्तारी के मफाद में है कि जिस किस्म के इख्तियारात अब गवर्नर स्टेट बैंक को दिए जा रहे हैं कि वो एक गैर मुंतखब मालियाती वज़ीर आज़म हो जो पाकिस्तान के अवाम को नहीं बल्कि IMF को जवाबदेह हों, चूँकि वो IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर भी होते हैं, तो उनकी जवाबदेही पाकिस्तान में किसी के सामने नहीं होगी। वो IMF के बोर्ड को जवाबदेह होंगे और उनके ज़रिए पाकिस्तान की मईशत को चलाएंगे। हम इस किस्म की खुद मुख्तारी के हक में नहीं हैं। और साथ में आपने कहा नहीं, मुस्लिम लीग क्या मांग रहा था? नहीं, मुस्लिम लीग की एस्टेब्लिशमेंट से क्या डिमांड क्या है? मुस्लिम लीग नून की एक ही डिमांड है कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे हमारे कौमी इदारे हैं, इनके ऊपर किसी किस्म की सियासत का शाइबा या शुबा भी नहीं पड़ना चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनके लिए हमारे कौमी दिफाई इदारे यकसुई के साथ काम कर सकें। माजी में जो सियासत में मुदाखलत हुई उसके अच्छे नताइज नहीं निकले और हम चाहते हैं कि हर इदारा आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करे और हम आहंगी से किरदार अदा करें। हम सब ने अपने अपने दायरे कार में मिलकर काम करना है, पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालना है और पाकिस्तान को एक अजीम मुमलिकत बनाना है जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात कैसे हैं? पीपल्स पार्टी से हमारे पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन के हैसियत में अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने PDM से अपनी राह जुदा की, ये उनका फैसला था। हम नहीं चाहते थे कि वो हमसे राह जुदा करें, लेकिन अगर उन्होंने राह जुदा की है ये उनका फैसला है। अलबत्ता पार्लियामेंट के अंदर हमारी मुसलसल कोशिश है कि अपोजिशन मिलकर हुकूमत के गैर आइनी अवाम दुश्मन इक़दामात का मुकाबला करे और हम इंशाअल्लाह ये करेंगे। नून लीग इतनी उछलत में क्यों है? ये जो PTI है ये महंगाई करके अपने वोट से खुद ये इलेक्शन हार जाएगी। आप लोग इतनी उछलत में क्यों हैं? ये हुकूमत गिराना क्यों चाहते हैं? हमारी बेटा तुम पूछ लो। देखिए, जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह साफ होकर आ गई है कि PTI ने गबन किया है और गबन की जितनी भी शक्लें हैं वो सब फ्रॉड किए हैं। तो इसलिए अब उनके पास कोई दिफा नहीं है सवाए इसके कि इमरान नियाज़ी इस्तीफ़ा दें और आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ तहकीकात का रास्ता हमवार करें। मुस्लिम लीग नून पे आज से 1 साल पहले से इलेक्शन कमीशन ने PTI को कहा है कि आपकी जो शिकायत है उसकी हमायत में कोई सबूत पेश करें। आज तक PTI मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ममनुआ फंडिंग का एक भी सबूत पेश नहीं कर सकी। वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, बयानात देते हैं। मैंने कल भी उस फैसले की ट्वीट की है जिसमें 1 साल पहले उन्हें कहा गया कि अगर आपके पास मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई सबूत है तो आप वो पेश करें इलेक्शन कमीशन को। आज तक उन्होंने वो पेश नहीं किया। PTI के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो उन शवाहिद की रोशनी में हुई है जो अकबर एस बाबर साहब ने इलेक्शन कमीशन को पेश किए थे। अगर PTI के पास हमारे खिलाफ कोई एविडेंस है तो वो पेश करे, हम उसका जवाब देंगे। उजलत में क्यों? हाँ, हम उजलत में इसलिए हैं कि अगर PTI इसी रफ्तार से पाकिस्तान की मईशत को कंगाल करती रही
तो 1.5 साल बाद खुदा ना खास्ता ये नौबत ना आ जाए कि कोई इज्जतदार शख्स या कोई जमात पाकिस्तान का वजीर आज़म का ओहदा लेने के लिए तैयार ना हो। ये ओहदा एक जूतों का हार बन जाएगा। ये इतने मुश्किलात में मुल्क को फेंक जाएंगे कि मुल्क को उन मुश्किलात से निकालना 5 सालों में भी नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी इनको रुखसत करके मुल्क को बचाया जाए उतना पाकिस्तान के मफाद में। बताइएगा, बिलावल भुट्टो ने कल जो है कहा है कि इस हुकूमत को गिराने के लिए अदब अस्मा सेनेट में भी लाई जाए, कौमी असम्बली में भी लाई जाए, तो उसके लिए मुस्लिम लीग क्या तैयार है? आप पूछ लीजिए। और आप पूछ लीजिए भाई जी। सर अगर आप पूछ लें आखिरी सवाल। चलो, जी, आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून सिंध के अंदर भरपूर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। हम कराची के अवाम को भी ऑल्टरनेटिव फराहम करेंगे और कराची जो कि सिंध का कैपिटल है उसके साथ साथ सिंध के सूबे में भी हम मुतबादल पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा पंजाब में किया है, हम समझते हैं कि सिंध के अवाम का भी हक है कि उनको तालीम, सेहत और तरक्की के वो मंसूबे मिलें जैसा कि हमने पंजाब में पेश किए हैं। तो ये हमारा जमहूरी हक है कि हम सिंध के अंदर भरपूर इंतखाबात में हिस्सा लें। हम लेंगे और ख़ास तौर पे मैं कराची के अवाम को कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने यहाँ अमन कायम किया। हमारे 4 वादे होंगे: कराची के अवाम को बिजली, कराची के अवाम को पानी, कराची के अवाम को अमन और कराची के अवाम को सफाई। ये 4 चीज़ें हम देंगे और मुझे यकीन है कि कराची के अवाम में इतना एंटरप्राइज है कि ये कराची को टोक्यो के मुकाबले का शहर बना देंगे अगर इनको बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत फराहम कर वापस करेंगे, हम वापस करेंगे, स्टेट बैंक लॉ वापस करेंगे हम, हमारी स्टेट बैंक। अगर जो कानून ये बुलडोज कर रहे हैं ये खुदा ना खास्ता पास करते हैं तो यकीनन हम अगर बरसर इक़्तिदार आएंगे तो उस पर नजरसानी करेंगे। एक मिनट स्टेट बैंक के लोग आए हुए हैं, स्टेट बैंक के यूनियन के लोग इधर आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि गवर्नर साहब ने इनसे वादा खिलाफी करी है, तो गवर्नर साहब से गुजारिश है कि जो वादे करें यूनियन से वो पूरे करे जाए।